Hi everyone, it's me Guni, and you guys are watching me on Learning for Life. Well, today we are here with the part 3 of what we have today. Yes, the laws, the gas laws chapter, the study of gas laws, class 9 ICSC. Yes. So, in today's lecture, we will be talking about what? Just guess. So we are going to talk about Boyle's law. We are going to start with the law of Boyle's law. Yes. So if you haven't watched the previous two lectures, they are very important for the basics of this whole laws now. So I would request you to go and watch those right now and then come back and watch this one. Okay, without wasting any time, let's get started. So, the Robert Boyle systematically studied the relationship between pressure and volume of the gases. So, who studied Robert Boyle? Robert Boyle ने एक systematically study किया about relationship between pressure and volume. जैसे मैंने आपको lastly बताया था, like pressure increases, वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो ये रिलेशनशिप किसने रीड किया था, किसने स्टडी किया था सिस्टमेटिकली? दैट वाज बॉयल, रॉबर्ट बॉयल. ओके, नाउ कम्स द मेन थिंग which is here. Okay, so he in 1662 found that the constant temperature, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया, वॉल्यूम एक जो पर्टिकुलर चीज की वॉल्यूम है, पर्टिकुलर ड्राई गैस की वॉल्यूम है, वो हाफ हो जाएगी अगर हम उसका प्रेशर डबल कर देंगे. लाइक प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज. तो प्रेशर को हमने 2 टाइम्स कर दिया, वॉल्यूम विल बिकम हाफ. ओके, नाउ it became 4 times of its original volume if the pressure was decreased to 1/4. तो अब अगेन मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड. यस, अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज. राइट, तो उन्होंने कहा कि अगर हम प्रेशर को 1/4 कर देंगे तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स. राइट, आई होप ये क्लियर है. अब इसने ये जो बिहेवियर है वो डिस्क्राइब किया एक लॉ देके जिसका नाम था बॉयल्स लॉ. ओके, तो बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ इज बेसिकली द लॉ, the volume of the mass of a dry gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. So volume of mass given is inversely proportional to the, रिमेंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है. राइट, आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी. आई एम गोना रिमूव दिस फ्रॉम हेयर. ओके, अब मैं आपको कुछ लिख के बताऊंगी बेसिकली. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, यस, हियर वी गो. नाउ सी, वॉल्यूम of mass is inversely proportional, means volume is inversely proportional to pressure. So volume increases, pressure decreases, pressure increases, volume decreases. Okay, I hope it's clear. And temperature is constant, remember, it is very important. तो जब भी आपके न्यूमेरिकल्स में, जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें, अगर जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हो तो बॉयल्स लॉ लगेगा. ये आपको रिमेंबर रखना है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. अब देखते हैं इसको डिराइव कैसे करा जा सकता है. इसकी जैसे हमने फिजिक्स में डेरिवेशंस करते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे केमिस्ट्री में करने वाले हैं. तो जस्ट सपोज कि एक गैस है जिसकी वॉल्यूम है V1 और उसका प्रेशर है P1. तो जैसे कि ये वाला मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला दिखाया था, लेट मी जस्ट चेंज द कलर. ओके, फॉर योर रिव्यू, ये रिलेशन दिखाया है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. सो V1 is inversely proportional to P1. Okay, you can see here. Now proportionality का साइन हटाने के लिए we use a, what we use, constant, which is K. K is the constant. So to remove the proportionality sign, we say K1 upon P, and K multiplies with 1, which is 1, K upon P. So V is equal to K upon V. Okay, now what happens after this step? I can show you, it is written upon here. Okay, so I'm gonna mark this for you,
and remove the rest because it's really messy and everything. So I'm gonna remove the extra parts for all of you so that I can make you understand better. Okay, so I'm unable to see the eraser here, that's why I'm gonna mark it. Okay, so what happens, इसी तरीके से ये हमने फर्स्ट गैस की डेरिवेट कर दिया that k upon p, v is equal to k upon p, right, for 1. now अब यही सेम तरीका हम सेकंड के लिए भी यूज करेंगे, that is v1 v2 is directly proportional to 1 upon p2, and then k is the constant, so v2 is equal to k upon p2. ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा if you look closely. so मैं आपको मार्क भी कर देती हूँ for you. ये आपको दिख रहा है. अब इसमें k is the constant, right? तो अब क्या होता है, see v2 is equal to k upon p2, जिसमें we have k constant, right? तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, सो v2 p2 is equal to k. सेम वाइज हम 1 के साथ भी करेंगे. v1 is equal to k upon p1, v1 p1 is equal to k. so these are equal because दोनों का आंसर क्या है, k है, राइट? आई होप ये क्लियर है आपको पॉइंट, क्योंकि डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आती है मोस्टली एग्जाम्स में एंड मैंने ये लिख के भी दिखाया है आप सबको. फिर भी मैं एक बार दोबारा राइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए इफ यू वांट. सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. यस, सो v1 upon p1 is equal to k, v2 p2 is equal to k. अब दोनों का आंसर k है तो क्या हो गया, v1 p1 is equal to v2 p2. सो इस फॉर्मूले से आप अपना कोई भी न्यूमेरिकल में या तो प्रेशर या तो वॉल्यूम निकाल सकते हो. दिस इज द ओके, this is the Boyle's law equation. I hope it's clear. Now let's just do it once more. अब मैं so yes, now let's talk about Boyle's law in other words. So Boyle's law को हम ये भी कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, जो कि हमने फॉर्मूले से ड्राइव किया वॉल्यूम एंड प्रेशर का प्रोडक्ट है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. यहाँ हम इसकी ये ले रहे हैं दैट डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, या यू कैन से इट इज द प्रोडक्ट of volume and pressure. I hope it's clear. And now let's move on to the next topic, which is graphical verification of Boyle's law. Graphs में देखेंगे हम इसको कैसे explain करते हैं Boyle's law को basically. So V versus 1 upon P. You know, we have said that if V increases, P decreases. But if V increases, 1 upon P also increases. उसको ऑलरेडी इन्वर्स हो चुका है, राइट? तो इसका ग्राफ हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन लाइन ग्राफ दे देंगे. ओके, आई होप क्लियर है. अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, विच इज V इज इक्वल टू P. आई होप ये भी दिख रहा है आप लोगों को. आई वांट टू शो समथिंग. इसलिए मैं क्लोजली थोड़ा करना चाहती हूँ, यू नो. यस, ओके, आई वांटेड इट टू बी अ बिट क्लोजर बट ये जूम नहीं हो रहा है राइट नाउ. इट्स ओके. सो इसमें क्या है, V वर्सेस P है. एज आई टोल्ड यू, V इंक्रीज P डिक्रीज. सो ये ऐसे अब हाइपरबोलिक कर्व बनेगा, बट 1 अपॉन P में इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके, आई होप ये क्लियर है. नाउ PV वर्सेस P. एक तरफ है PV वर्सेस P. तो ये स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस. ओके, आई होप ये क्लियर है पॉइंट आपको. अब मॉलिक्यूलर मोशन मतलब काइनेटिक थ्योरी के टर्म्स में हम बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, number of particles present in mass
and average kinetic energy processed by the pressure particles is constant. तो काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी एक मास में है और उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो कि पार्टिकल्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स कांस्टेंट. ओके. फिर if the volume of a dry gas is reduced, volume decreased, वॉल्यूम अगर हम इसको हाफ कर देंगे तो सेम नंबर, मतलब the same number of particles will have half the space at unit area to move. मतलब you understand this with diagram. तो अगर आपके पास इतनी जगह है तो यहाँ पे हमारे सारे molecules हैं. ओके, just see this. So we have a lot of molecules here और ये आपकी इतनी सी जगह है, राइट. लेकिन अगर आप वॉल्यूम को हाफ कर देंगे, वॉल्यूम कम हो गई, हाफ. तो यही सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास आधी जगह है मूव करने के लिए, पर यूनिट ज्यादा आ जाएंगे. ओके, आई होप इट्स क्लियर. सो they will have half the space to move, as well as the molecules striking at unit area of the walls of the container will get doubled. तो क्या हो रहा है, volume decreasing, and the number of molecules exerting pressure in a particular area will increase. वॉल्यूम हाफ करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक जगह पे जहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं वो डबल हो जाएंगे. ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ. सो इससे क्या होगा, what will happen due to the result of this, what will be the result of this? So pressure also gets doubled. That's why it says P increases, V decreases. समझ आ गई. अब कन्वर्सली अगर वॉल्यूम डबल किया जाए एक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो मॉलिक्यूल्स के पास डबल स्पेस हो गई, तो मॉलिक्यूल्स एक जगह पे जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे. सो दे विल हैव डबल द स्पेस, कॉन्स्टिट्यूएंटली पर यूनिट एरिया द स्ट्राइकिंग number of molecules striking per unit area at the wall will become half. तो अब डबल इन वॉल्यूम डबल हुई है तो मॉलिक्यूल्स हाफ हो जाएंगे पर यूनिट एरिया. इससे क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है. थ्रू आउट हमने यही पढ़ा है ऑलमोस्ट कि वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज. ओके. अब सी ये इससे ये पता लगता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस डिक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. जो हमारी वॉल्यूम है कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी. ओके, नाउ यही हमारा बॉयल्स लॉ है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट significance of Boyle's law. Boyle's law, what does Boyle's law state? So Boyle's law states that, so to understand this better, let's talk about some examples. Okay, so pressure जब हमने increase किया वॉल्यूम डिक्रीज हुई, ये हमें पता है. अब जब वॉल्यूम डिक्रीज होती है, यू नो इस काम पे जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे एक पर्टिकुलर प्लेस में, तो जिससे क्या होगा, एक गैस हो जाएगी डेंसर, राइट. और कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली टू प्रेशर. सो प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वॉल्यूम. ओके. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होता है एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, तो इसकी वजह से हाई ऑल्टीट्यूड्स में जो एयर है वो लेस डेंसर होती है. ओके, इसलिए ऑक्सीजन की क्वालिटी जो है वो लेस क्वांटिटी है हमारे ऑल्टीट्यूड्स पे, माउंटेन्स पे ब्रीथ करने के लिए. इसी का रीज़न है कि माउंटेनियर्स जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं विद देम. सो रिमेंबर, एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि ये वाला एक रीजनिंग क्वेश्चन आता होता है, सो इसको एक बारी प्लीज रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से. ओके, अब एक नोट पढ़ते हैं हम लोग. सो नोट कहता है कि जब एयर ब्लो करते हैं हम बैलून में,
उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसे में हम सोचेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, बॉयल्स लॉ तो लग नहीं रहा, बॉयल्स लॉ तो खराब हो गया। बट एक्चुअली बॉयल्स लॉ यहाँ पे नहीं होता, क्या कहते हैं, वायलेट, बिकॉज वो सिर्फ एक डेफिनाइट मास के लिए, पर्टिकुलर मास के लिए यूज होता है, जबकि बैलून में मास इंक्रीज करते हैं, होता रहता है जब हम उसमें एयर ब्लो करते हैं। तो यहाँ पे मास फिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से ये होता है, जबकि बॉयल्स लॉ में हमेशा मास हमें फिक्स्ड रखना है, राइट। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है आज के चैप्टर का। बॉयल्स लॉ हमने स्टडी किया, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको एक बारी ग्लिम्स दे सकती हूँ। ओके सर, इसमें हम करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स विच वी विल बी डूइंग। काफ़ी सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बॉयल्स लॉ कैसे यूज़ करना है वो समझाऊंगी, तो वो एग्जाम्पल से ही हम समझ पाएंगे। ओके, देन वी विल ऑल्सो बी डूइंग एग्जाम्पल्स, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं ऑब्वियसली। ओके, फिर हम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ करेंगे विच विल बी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर हम अनसॉल्व की तरफ भी देखेंगे, और फिर हम एक ये पार्ट करेंगे टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप इन गैसेस, और उसके बाद जो हमारा चार्ल्स लॉ है वो हम इन द नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, and hit the notification bell so you get notified whenever I post a video. So we'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, take care.